Hello everyone. Today we'll start with new chapter, that is inverse of trigonometric function. Inverse of trigonometric function, or you can say that inverse trigonometric function. आप inverse of trigonometric function बोलिए या inverse trigonometric function, और हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इनको याद रखने वाले हैं ITF. Okay, inverse trigonometric function. So we will learn about this chapter. What is the meaning of the inverse? Then we know what is the meaning of trigonometry. What is the meaning of function? First we will discuss this. Then after that we will come to there's some the property which is related with the what inverse trigonometric function. तो हम लोग इस पूरे पार्ट को देखने के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करने वाली है, जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ITF, inverse trigonometric function. So what is trigonometric function first, guys? Trigonometric function क्या होता है? There are two terms we have here. One is inverse, another is trigonometric, and we have the function. Okay. So what is the meaning of trigonometric function? First we will define this point. So if I will write on y equal to sin x, okay, y equal to cos x, y equal to tan x, okay, and so on, y equal to cosec x and cot x, जो आपके 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है. ओके, यदि उसको किसी एक इक्वेशन के साथ कंपेयर करो और इक्वेशन के टर्म्स में लिखोगे, दैट इज नोन एज अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ओके, that is known as what? Trigonometric function. This sin x, cos x, tan x is basically what? Trigonometric function. So what is the meaning of inverse trigonometric function? Okay, हमें समझना है कि inverse trigonometric function क्या होता है. Before, so if you want to learn about the inverse trigonometric function, so before that you should know what is the meaning of inverse of a function. Okay, तो हम लोग यहाँ पर अभी पहले डिस्कस करेंगे what is the meaning of inverse of a function. Inverse of a function. ओके, कैसे डिफाइन किया जाएगा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को? तो आपने फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में आपको इनवर्स ऑफ फंक्शन मैंने पढ़ाया था. कैसे डिफाइन किया जाता है? लेट देयर इज अ फंक्शन f x to y, then there exists a function, g y to x such that g of f of x will be equal to what, guys? कितना आएगा? x, and f of g of y will be equal to, yes Tanay, क्या आएगा? f of g of y will be equal to y. Okay, because f is defined. Okay, if you look at the domain of f is x, so आपका जो ये फंक्शन डिफाइन होगा वो x के टर्म्स में रहेगा, इसलिए g of f of x you will get x, and जो g फंक्शन है ना वो डिफाइन किसके लिए डोमेन में? y के डोमेन में है, इसलिए आप f of g of y निकालोगे तो क्या मिलेगा? y. तो जब कोई फंक्शन f दिया है x to y, and then there exists a function g y to x such that g of f of x equal to x and f of g of y equal to y, एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा कुछ आपको मिल रहा है, then g is called as inverse of f, and it is denoted by, or we can say it is denoted as f inverse. कैसे डिफाइन किया जाता है? f inverse. So we can say that if since our function is defined from x to y and another function is defined from y to x, and there exists, क्या सब exist करना चाहिए? g of f of x will be equal to x and f of
g of y will be equal to y, then mathematics में ऐसे लिख सकते हो आप then g will be known as the inverse of f and represent like this. तो g equal to क्या हो जाएगा, f inverse हो जाएगा. G will be equal to what, f inverse. So this is the basic definition of inverse of function. But for the inverse of a function, you should have a function. Which type of function we should have? Inverse सबका सारे फंक्शन का नहीं होता है. ऐसा मैंने लेट बोल दिया f x to y, तो और कोई एक फंक्शन है g y to x, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मतलब इनवर्स मिल जाएगा. Your function should be, yes guys, बाइजेक्टिव means 1 1 and on 2 जो फंक्शन होगा उसी का इनवर्स पॉसिबल होगा. ठीक है. After that we will talk about next point or next type of, we can say the definition, that is reciprocal function. Reciprocal function. So if you want to study inverse trigonometry function, first you should know this. So what is the difference between inverse of a function and the reciprocal function? जब तक आपको ये दोनों चीज क्लियर नहीं होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट को दिमाग में ये रहता है क्या कि इनवर्स और रेसिप्रोकल दोनों क्या है, सेम है. ठीक है. बट आपको ये दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. ठीक है. दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. तो व्हाट इज अ रेसिप्रोकल फंक्शन? तो आप लोग में से कोई डिफाइन कर सकते हैं? श्री, कैन यू डिफाइन what will be the definition of reciprocal function? आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरह से बताइए, जो भी आप समझते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन से. 1 by f of x. 1 by f of x. Like 1 by the function. 1 by the function. Okay. कोई और? It is 1 by f of x. सही है. और नहीं तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि if f is defined from x to y, f is defined from x to y, then x to y यहाँ पे कोई भी किसी भी डोमेन एंड रेंज के लिए जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे आप इसको डिफाइन कीजिए इनवर्स रेसिप्रोकल को. if f and g are two function, such that product of f and g will be equal to 1. Product of f and g will be equal to 1. Then g is called as the not inverse. G is called as what? Reciprocal of f, and f is called as reciprocal of g. The g is called as what? Reciprocal of f, and it is written as g equal to 1 by f. g equal to 1 by f. मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करनी है. यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है वो नहीं किया है, क्योंकि यदि आप कोई फंक्शन f x to y डिफाइन कर रहे हो तो g आपका y to x नहीं होगा. आर यू क्लियर दिस? वो किस में होता है? वो इनवर्स में होता है. रेसिप्रोकल में डोमेन टोटली इंटायरली चेंज हो सकता है. ठीक है. जैसे मैं आपको पूछूं कि सपोज करो आपके पास कोई एक फंक्शन f of x इक्वल टू sin x. ओके. तो दूसरा फंक्शन वो क्या होगा? ओके. जो इन दोनों का प्रोडक्ट f of x into g of x का प्रोडक्ट आपको 1 देगा. तो कैन वी से दैट कि sin the basically f of x is what? sin x into g of x कितना हो जाएगा? सेम, and that equal to 1. So can we say that g of x will be equal to what? 1 by sin x. And the 1 by sin x also what we can say, that is a reciprocal of the function. आप रेसिप्रोकल फंक्शन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि यदि कोई फंक्शन f है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1 by f. 1 by sin x is known as what? 1 by sin x is known as, guys, am I audible? 1 by sin x is known It's as lagging. It's lagging. Just a second. Now, audible? Hello? Yeah. So, what is the 1 by sin x, guys? Cosec x. Cosec x. Cosec x. So, the reciprocal of sin x is a cosec x. Inverse of sin x is not cosec x. ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है
inverse of sin x is a cosec x, not. It is just reciprocal of that. Okay, so if I'm listing here some function, okay, and here reciprocal function of this that function, reciprocal function. श्रेयरी आप बताइए sin x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 by sin x, that is what? cosec x. What will be the reciprocal of 1 by x? श्रेयरी 1 by x का रेसिप्रोकल क्या होगा? श्रेयरी, are you there? Hello? You are not audible. Tanay? X. X. Reciprocal of means 1 upon x. That will be equal to what? X. What about the cos x? Their reciprocal will be 1 by cos x. It means that sec x. X. Okay. So this is the reciprocal function. Okay. So there is slightly, not slightly, it's entirely different. It is entirely different. Inverse is different. Reciprocal is different. Now, we will talk about here the inverse of a trigonometric function. अब हम लोग inverse of trigonometric function define करना start करते हैं, ठीक है? Okay, my question is, what will be the inverse of sin x? What will be the inverse of sin x? Or we have a function like this. What will be the inverse of sine function? Sine function. इसका inverse क्या होगा? अभी मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं. The first option is cosec x. Second option is sin inverse x. कौन सा राइट है यहाँ पे? बताइए. Second one. तो क्या second one और first one दोनों same है? The first one is a reciprocal function and the second one is a inverse of that function. Okay, मैं आपको बताने वाला हूँ कि actually में क्या है नहीं है, so don't worry about it. Okay, मैं समझाता हूँ. Okay, now come back to the definition of inverse function. Inverse function में क्या कहता है? Let f such that x to y, let f such that x to y, then there exists a function. Then there exists a function means what? G such that y to x. Then there exists a function. There exists कैसा symbol there. Then there exists a function g y to x such that implies, और यहाँ पे such that लिखे, implies नहीं लिख सकते हैं. This is there exists such that g of f of x should be equal to what? X. एक ही function. और दूसरा क्या होना चाहिए? f of g of y equal to y. f of g of y equal to y. Then we can say that g is the inverse of f. इतना है. अभी हम consider कर लेते हैं. Consider f of x equal to sin x. हम sin x को define करते हैं. And we know that sin x is defined from where to where? And can we say that here function is defined from, इसका domain क्या होता है? All the real number. Yes guys, all the real number. And what about the range for the sin x? Can anyone? Range for the sin x? Between -1 and 1. Between -1 and 1. So this is -1 and 1. So there exists a function. कौन सा function exist करना चाहिए? A g. उसका domain क्या होना चाहिए? -1 to 1. And range क्या होना चाहिए? बताइए. Range क्या होना चाहिए? Real number. Real number. Range क्या होना चाहिए? Real number होना चाहिए. ठीक है. Then such type of that function will call it the inverse. Okay. लेकिन सर इनको हम find कैसे करें? इनको हम find कैसे करें? That is important ना. वो g जो function है ना,
उसको हम लोग कैसे निकाल लें, ठीक है। इनके लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड को फॉलो करेंगे, ग्राफिकल मेथड को फॉलो करेंगे। तो पहले हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना करके देखते हैं क्या आता है। सो आई एम ड्राइंग द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स हियर, मींस दिस इज द एक्स एंड दिस इज द एफ ऑफ एक्स। वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x इज व्हाट, sin x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, and the minimum value of the sin x is what, the -1। ओके, आप थोड़ा सा वैल्यू लिख लीजिए x का, x0 लिख लीजिए, फिर कितना लेंगे π/2, फिर कितना लेंगे पाई, फिर 3π/2, 2π। ओके, आप आगे भी जा सकते हैं, -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π, -2π। now sin π/2 is what 1, sin π 0, 3π/2 is -1, 2π 0, -π/2 is -1, pi 0, -pi 0, 3π/2 is 1, and 2π -2π equal to 0. So if you draw the graph of this, you will get the graph like this। कुछ ऐसा ग्राफ आगे जाएगा, yes or no? Yes. Now tell me it is a function or no। पहले ये बताओ ये फंक्शन है या नहीं है, जल्दी बताइए। ये जो आपको मैंने ग्राफ दिखाया, डिफाइन किया है, ये किसका ग्राफ है, sin x का। sin x इज अ फंक्शन और नो, sin x फंक्शन है ना, sin x, यस। और चेक कैसे करेंगे, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन इन देयर गिवन डोमेन। इस डोमेन में ये फंक्शन है या नहीं है, चेक कैसे करेंगे। यू जस्ट पास अ वर्टिकल लाइन, फंक्शन को चेक करना, वर्टिकल लाइन आप एक पास करो। इफ यू विल गेट अ सिंगल कट, यदि आपको एक सिंगल कट मिल रहा है, then that will consider as a function। So if you draw a vertical line, okay, at any value for x, you will get a single cut on that curve। Are we getting yes or no? Yeah, एक ही कट मिल रहा है ना, देखो ना, यहाँ पे ये कट मिल रहा है, यहाँ पे ये कट मिल रहा है, यहाँ पे ये कट मिल रहा है, यहाँ पे ये कट, एक ही जगह पे कट हो रहा है। That's why this is called a vertical check for a function। So it is a function। Now we will try to draw the graph for a function g which will be just inverted of this। inverted of this means what, ये जो आपको ग्राफ मैंने बना करके दिखाया, किसका ग्राफ है, ये ग्राफ f of x equal to sin x का है। now we have to draw a graph of g function, और and for the we know that for the inverse उसका डोमेन और रेंज क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। इनका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 to 1, So the same graph in terms of to the real y. number। but what we have to do here, कि जो वैल्यू x पे है ना वो सारा का सारा y पे चले जाएगा, और जो y पे है ना वो सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, x पे आ जाएगा। मतलब आप ग्राफ को थोड़ा सा राइट क्लॉकवाइज आप 90 डिग्री ये कर सकते हैं क्या, बताइए। बट वैल्यू याद रखिएगा, वैल्यू आपको ना माइनस वाले पाई को इधर रखना है और प्लस वाले को ऊपर रखना है, ठीक है। सो नाउ आई विल टेक द वैल्यू एसोसिएटेड विद द x। ये अभी भी x ही रहेगा गाइस, दिस विल बी अगेन x ओनली, और ये आपका y है, बिकॉज नाउ राइट नाउ आई एम टेकिंग दिस एज व्हाट -1 to 1। अब मैं इनको x ले रहा हूँ। सर आपने यहाँ तो y लिया था ना, बच्चा x y सेम रहने दो, ताकि हम, नहीं तो आपको फंक्शन f इनवर्स y मिल जाएगा, f इनवर्स x के जगह पे आप यहाँ y और यहाँ x ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो y और ये ले लो, ये y ले लो, ये x ले लो। अब बताइए y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पे कितना, -1, ओह सॉरी नॉट -1, +1, यहाँ पे कितना आ जाएगा गाइस, -1। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, कैन वी से दिस इज π/2 हियर, जल्दी बताइए कितना है गाइस, Pi. कितना आ जाएगा, पाई 3π/2 and 2π। व्हाट अबाउट हियर, -π/2, -π, -3π/2 and the -2π। नाउ करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप डिफाइन कीजिए, करस्पॉन्डिंग आप क्या कीजिए, वैल्यू डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो पाई पे 0 पे 0 ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। π/2 पे कितना था वैल्यू 1, पाई पे फिर कितना आ गया 0, 3π/2 कितना था -1
एंड 2 पाई पे कितना था 0. व्हाट अबाउट हियर माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 पाई पे 0 माइनस पाई पे 0 3 पाई बाय 2 पे 1 एंड 2 पाई पे कितना आ गया 0. नाउ इफ यू विल ड्रॉ द ग्राफ देन यू विल गेट द ग्राफ लाइक दिस. कैसा मिलेगा ग्राफ जल्दी बताओ. ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलेगा. Are you clear with this? Now I'm asking here, g is a function. Okay, here g is a function or not? Tell me this thing first. बताइए यहाँ पे g फंक्शन है या नहीं है फॉर दिस गिवन डोमेन. इस गिवन डोमेन में g फंक्शन है. No. Yes. Yes. Okay, check करो. If I draw a vertical line, okay, how many cuts we have here? Infinite many cuts, because it is not only 2 pi ना, ये ऊपर भी जाएगा like this, ये नीचे भी आ रहा है. How many cuts we will get? Means you have 1x. यदि मैं x का वैल्यू यहाँ पे मतलब सपोज करो आपने y लिया है तो इस फंक्शन के लिए y डोमेन है. मतलब यदि मैं y का वैल्यू हाफ लेता हूँ, y का वैल्यू हाफ, मतलब if I am drawing of the pictorial view of this, okay, so if I am drawing a function g from y to x और y में मतलब डोमेन आपका यदि हाफ हो रहा है तो x आपका कितना हो रहा है बताइए. हाफ. हाफ मतलब समझ रहे हो, कहीं पे यहाँ पे लो तो यहाँ पे कितना आ रहा है हाफ पाई बाय 6 आ रहा है. फिर कितना आ रहा है पाई बाय 6 के बाद 5 पाई बाय 6 आ रहा है. फिर कितना आ रहा है 2 पाई प्लस पाई बाय 6 दैट इज 13 पाई बाय 6. 13 पाई बाय 6 आ रहा है. मीन्स एक x का कितना वैल्यू आ रहा है. There is the one pre-image, for that we have the several image. Means one input or so many outputs. Is it a function guys? यदि मैं g को डिफाइन करता हूं तो is it a function? No. No, it is not a function ना. एक x का एक ही y होना चाहिए ना. एक डोमेन का एक क्या यूनिक रेंज. क्लियर विद दिस पार्ट. जल्दी बताइए. Yes, sir. So for one domain there should be one range ना, unique range, एक range होना चाहिए. But यहाँ पे कोई unique range ही नहीं है. So right now it is not in an inverse. ये inverse नहीं है. Okay. So for that, तो सर इसको inverse कैसे बनाया जाए? Okay. इसको inverse बनाया जाए. अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. आपने जो start किया था यहाँ पे फंक्शन लेकर, कौन सा फंक्शन हमने लिया था यहाँ पे? करिश्मा, which function we consider, मतलब हम लोगों ने जहाँ पे कंसिडर किया कौन सा फंक्शन कंसिडर किया था? F of x equal to sin x. Sin x is, look at it, sin x is 1 1 and onto function, yes or no? Just tell me that. It is a 1 1 or not? पहले तो ये हमें बताओ sin x 1 1 है. For this real number sin x is a 1 1 or not? हाँ 1 1 का मतलब होता है एक x के लिए एक ही y होना चाहिए. अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे कितना आया है पाई बाय 2. x इक्वल टू पाई बाय 2, y इक्वल टू कितना है 1 है. अच्छा x इक्वल टू 3 पाई बाय 2, y इक्वल टू कितना है 1 है. ये 1 1 फंक्शन है क्या? अब देखो ना, तुमने x के जगह कितना लिया, एक बार पाई बाय 2 लिया, एक बार 3 पाई बाय 2 तो माइनस आ जा रहा है ना, -3 pi by 2. माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2 ले लो. लेकिन इधर क्या है 1 ही आ रहा है. इनके लिए भी यूनिक है, इनके लिए भी यूनिक है, बट इट इज अ 1 1 फंक्शन. फर्स्ट टेल मी दिस. इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन. इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन. इसलिए इसका इनवर्स आप देख रहे हो, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. ओके क्यों? फॉर द चेकिंग ऑफ द फंक्शन, वर्टिकल चेकिंग ऑफ द फंक्शन, वर्टिकल लाइन चेक बोलते हैं फंक्शन का, उसमें यदि आप डिफाइन करो तो फंक्शन आपका डिफाइंड ही नहीं हो रहा है. दैट इज नॉट अ फंक्शन इवन. तो सर इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होता क्या? हाँ होता है. तो इसके लिए क्या किया जाएगा सर? ऐसा क्या करना चाहिए जो यहाँ से इसका इनवर्स पॉसिबल हो सकता है? गाइस बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें से कुछ नहीं समझ आ रहा है, एंड दिस थिंग विल नॉट आस्क इन योर एग्जाम. ये मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट डेवलप करने के लिए बता रहा हूँ कि एक्चुअली में रीजन क्या है फंक्शन का. Sir, Okay, again inverse. lag. ओके
Not audible, Sri? Still lag. Still lagging. So right now this is not the what? The one function. But if I choose an interval like this, मैं एक इंटरवल चूज करता हूं कहां से कहां तक, ये आगे का पूरा ग्राफ में हटा देता हूं, क्योंकि साइन एक्स क्या है, वन फंक्शन नहीं है पूरे अपने डोमेन के लिए, तो मैं उनका डोमेन कम कर देता हूं। डोमेन कम करे कहां से कहां तक कर देता हूं, अभी बताइए कहां से कहां तक मैंने डोमेन किया है, कहां से कहां तक डोमेन किया है, -π/2 टू π/2, मतलब स्ट्रिक्ट कर देता हूं उसके डोमेन को, -π/2 टू π/2 मींस हियर राइट नाउ द फंक्शन साइन का जो डोमेन है वो मैं कहां से कहां तक लिया हूं, -π/2 टू π/2। नाउ फॉर -π/2 टू π/2 इट इज अ 1 और नॉट, चेक दैट 1 है कि नहीं, x का एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू है, यहाँ पे x वाला एक वैल्यू है, मतलब we can say that it is a 1 right now. Now if I take the or if I find the not inverse of this function, तो मुझे यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी हटाना पड़ेगा, जल्दी बताइए, क्योंकि अभी मेरा y रिस्ट्रिक्टेड हो गया, इट इज नॉट रियल, मतलब जो यहाँ पे रेंज है इसका रेंज मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कहां से कहां तक कर दिया वो, -π/2 टू π/2। Now check that from -π/2 to π/2 it is a function or not, अब आप वर्टिकल चेक करके देखिए, it is a function or not guys, it is a function or not, Yes. it is now, it is a function, okay, and we can say that this is the inverse function of ये वाला जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ का वो ग्राफ क्या है, इनवर्स फंक्शन है। So if this a graph, this graph is for y equal to or f of x equal to sin x, तो ये वाला जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए, ये ग्राफ किसका होगा, Inverse. g ऑफ, यहाँ पे x डोमेन है या y डोमेन, g ऑफ y इक्वल टू व्हाट, g ऑफ y इक्वल टू क्या होगा बताइए, यहाँ पे g ऑफ y इक्वल टू sin x लिखेंगे या क्या लिखेंगे, हाँ Sin inverse x. sin x या sin y, sin y लिखेंगे, ये चलेगा क्या, अब बताओ यदि sin y मैंने लिखा, sin y मैंने यहाँ पे लिखा, क्या प्रॉब्लम, नीचे मैं डिस्कस करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। सो मैं इसका इक्वेशन, इस जो कर्व का इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस कर्व का यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, g ऑफ y will be equal to what I have to write down, that is the problem, so will I write sin y here, तो y का तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया है, दिस इज योर y एंड दिस इज योर x ना, तो -1 to 1, तो क्या साइन आपने कभी 1/2 पढ़ा है क्या, नहीं, साइन 1/2 हमने नहीं पढ़ा है, हम साइन का कुछ एंगल के साथ पढ़ते हैं ना, दैट्स व्हाई इट इज नॉट बेसिकली sin y, इट इज, आपने क्या डिफाइन किया था, इट इज अ इनवर्स फंक्शन ऑफ sin x, okay, and that's why g of y will written here the sin inverse y, क्या लिखा जाएगा, sin inverse y, where y belongs from where to where, y belongs from कहां से कहां तक, -1 to 1, and g of y belongs from where to where, g of y मतलब ये वाला, इसका वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, and this -π/2 to π/2 is called as the principal interval for the sin x, मतलब sin inverse not sin x, sin inverse x, sin inverse x का जो प्रिंसिपल इंटरवल होता है वो कहां से कहां तक होता है, -π/2 to π/2। तो सर एक ही प्रिंसिपल इंटरवल होगा, नहीं, आप सपोज करो आपने जब ग्राफ को यहां से यहां तक के लिए ब्रेक किया होता, ओके, अगला वाला इंटरवल के लिए आपने ब्रेक किया होता, तो क्या उसके लिए इनवर्स नहीं डिफाइन होता, उसके लिए भी इनवर्स डिफाइन होता, बस आपको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ तोड़ के कोई भी प्रिंसिपल इंटरवल क्रिएट किया जा सकता है, बट इट इन स्टैंडर्ड जो -π/2 से π/2 है वो लिया गया था किसके लिए, एक प्रिंसिपल इंटरवल सेट किया गया था, ठीक है। अब इसी को इन टर्म्स ऑफ x भी आप डिफाइन कर सकते हो, ये जो g ऑफ, सपोज मैं इस पे x लेता और यहाँ y लेता और ये आपका 1 होता, ये -1 होता,
ठीक है। और ऐसा कुछ ग्राफ होता, ये -π/2 होता और ये π/2 होता, और ये ऐसा कुछ ग्राफ होता, बस सेकंड, ऐसा कुछ ग्राफ होता, तो इस ग्राफ का इक्वेशन होता y इक्वल टू साइन इनवर्स x। y इक्वल टू व्हाट? साइन इनवर्स x, जहां पे x का वैल्यू होता -1 to 1 and the y का वैल्यू होता -π/2 to π/2, and this is basically, this sin inverse x is called as inverse of sine function, inverse of sine function, which is not equal to what? 1 by sin x. Are you clear with this entire part? Yes, Tanay? Yes, sir. सो प्रिंसिपल इंटरवल एक हो सकता है, एक ही होगा क्या? -π/2 to π/2? नहीं, जहां जहां जिस इंटरवल के लिए आपको 1 1 बन रहा है ना, जैसे साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना साइन का ग्राफ। आपने यहां से यहां तक के लिए इंटरवल क्या बन रहा था? 1 1 बन रहा था। अब ये 1 है, ये -1 है, ये इंटरवल, मतलब आप π/2 से 3π/2 को भी आप क्या बोल सकते हो, इसके लिए भी 1 1 फंक्शन है ना, ये 1 1 है, ऑन टू भी हो जाएगा ये, मतलब इसके लिए भी आप इनवर्स निकाल सकते हो। तो आपको एग्जाम में कोई भी इंटरवल दिया जाएगा, लेकिन यदि प्रिंसिपल इंटरवल की बात किया जाएगा तो दैट विल बी ऑलवेज -π/2 to π/2। ओके, नाउ if you look at the other for the other inverse function, तो सबका प्रिंसिपल इंटरवल कैसे निकाला गया आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो वी विल नॉट डिस्कस ईच एंड एवरी, ओके, आप वहां से समझ सकते हो। सो अभी मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, उस टेबल पे आप ध्यान दीजिएगा, और उससे आपको बहुत सारा जो टॉपिक है और पॉइंट्स है वो आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज मेक दिस टेबल एवरीवन। ठीक है, तो पहला आप लोग फंक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, और यहाँ पे नाम कर देंगे, और ऐसे 6 फंक्शन हम डिफाइन कर देते हैं। सो दिस इज वन, जस्ट सेकंड। Okay, the first function I will take here y equal to sin x, y equal to sin x। बताओ यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा इनवर्स, इनवर्स में क्या लिखोगे बोलो? Sin inverse x. sin इनवर्स x, sin इनवर्स x मतलब यहाँ पे y लेंगे, y इक्वल टू व्हाट? sin इनवर्स x, ठीक है, y इक्वल टू sin इनवर्स x। सर यहाँ पे y बराबर sin x, यहाँ पे y बराबर sin इनवर्स x, दोनों चलेगा क्या? ठीक है, तो ये जो मैं डोमेन एंड रेंज डिफाइन करने वाला हूँ ना, ये किसका डिफाइन करूंगा? इनवर्स का। ओके, यहाँ पे y नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ sin x लेते हैं, फंक्शन है sin x, तो y इक्वल टू sin, तो डोमेन एंड रेंज फॉर बेसिकली, जस्ट सेकंड, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मैं फंक्शन का डोमेन रेंज की बात नहीं करूंगा, मैं इनवर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। आप इस y को हटा दो, तो sin x का इनवर्स कितना हो जाएगा? y इक्वल टू sin इनवर्स x। व्हाट अबाउट cos x? y इक्वल टू, नहीं तो साइन के बाद cos नहीं, साइन का जो भाई होता है ना, मतलब क्लोज रिश्ता जिसके साथ है, बताओगे वो कौन सा फंक्शन है ट्रिगो में? साइन का क्लोज रिश्ता किसके साथ है? tan के साथ है, तो tan x, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? tan इनवर्स x। ओके, और साइन का जो अपोजिट है पता है कौन है, मतलब उल्टा काम करने वाला, बताओ? कोसेक x ना, तो y इक्वल टू या कोसेक इनवर्स x, आफ्टर दैट द cos इनवर्स x। तो दिस इज द वन सेगमेंट, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, और नीचे का जो है 3 वो अलग सेगमेंट में आता है, तो 2 अलग अलग ग्रुप बनाए, साइन, tan, कोसेक। दिस इज द वन पार्ट ऑफ द कोसेक, सॉरी cos इनवर्स। cos का जो आसपास का पड़ोसी है कौन है, क्लोज रिश्ता रखने वाला, जल्दी बताओ? cot इनवर्स, cot इनवर्स x। व्हाट अबाउट नेक्स्ट?
जल्दी बताइए इसका। यहाँ पे इनवर्स क्यों लिख लिया मैंने? दिस इज cos x, दिस इज cot x, and what is the opposite of the cos? जल्दी बताइए। Sec. sec x। y equal to cos inverse x, y equal to cot inverse x, y equal to sec inverse x. What is the reciprocal function? रेसिप्रोकल फंक्शन साइन का, इसका नहीं बोल रहा हूँ, फंक्शन का बोल रहा हूँ। देखो मैं इनवर्स का रेसिप्रोकल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे बच्चा यदि इनवर्स का रेसिप्रोकल निकालने चले गए। हाँ ध्यान रखना, तो रेसिप्रोकल ऑफ मैं फंक्शन बोला हूँ, तो दैट इज 1 by f of x। तो 1 by sin x इज व्हाट? cosec x, tan का, cot x, cosec का, sin x, cos का, sec x, cot का, tan x एंड sec का, बोलिए cos x। What is the domain or principal interval of this sine और sin inverse x? इनवर्स के बारे में बात की हम लोग, उसके बारे में बात करेंगे, उसका डोमेन क्या होगा? डोमेन मीन्स x और y। श्री डोमेन प्रिंसिपल इंटरवल और डोमेन मीन्स व्हाट? x और y, दोनों में कौन सा होगा? x और y। y is a function of value of the function, y is the value of the function, and value of the function is called as a range। x is the, what we can say, x is the number on which function is defined, और जिस पॉइंट पे और जिस कलेक्शन और जिस डोमेन पे ले और जिस क्या बोल सकते हैं प्री इमेज के लिए एक फंक्शन डिफाइन होता है, उस प्री इमेज को बोलते हैं डोमेन। तो यहाँ पे कौन डोमेन और कौन रेंज है? तो y है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे y बिलोंग्स टू, और x will be the what? x is the basically collection on which function is defined, that's why it will be written as in terms of domain। तो x यहाँ पे आएगा। Everyone clear with this part? Karishma? Yes, sir. Okay. So what will be the principal interval of sin inverse x, Karishma? इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। sin inverse x का प्रिंसिपल इंटरवल -1 to 1. प्रिंसिपल इंटरवल बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, मतलब x क्या होगा यहाँ पे? -π/2 -π/2 to π/2 मारेंगे आकर के -π/2 to। बताया था यहाँ पे आप क्या रखने वाले हो? x वाला याद करो, x एक्सिस पे क्या रखते हैं इनवर्स में? 1 -1 to 1 था, π/2 कहाँ आ जाएगा? तो ये जो मैंने यहाँ पे गलती से प्रिंसिपल इंटरवल लिखा है ना, तो ये प्रिंसिपल इंटरवल डोमेन के साथ नहीं आएगा, प्रिंसिपल इंटरवल इसके साथ आएगा, रेंज और प्रिंसिपल इंटरवल यहाँ होगा। ओके, so this is a domain। So here x belongs to -1 to 1, this will be the domain। Means can we find or sin inverse 2 will define? Are we able to find out the value of sin inverse 2? पॉसिबल है क्या? नो। श्री आवाज बीच में चली गई होगी। श्री आर यू क्लियर विद दिस पार्ट? sin inverse 2 is what? Not defined। Not defined why? Because their domain is restricted। domain is restricted, that is a -1 to 1, because value of sin x का वैल्यू -1 to 1 ही रहता है, इसलिए उसका इनवर्स में जो डोमेन आएगा, जो रेंज है sin inverse x का, वो डोमेन बन जाएगा। The range of sin inverse sin x is what? -1 to 1, तो डोमेन हो जाएगा इनवर्स का -1 to 1। But what about the range? रेंज कुछ भी हो सकता है sin inverse x का, बट वो प्रिंसिपल इंटरवल के टर्म में चाहिए। बट फॉर आर कन्वीनियंस वी कैन से that the range or principal interval will be -π/2 to π/2। okay, what about for this? अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। अब बताइए what is the domain of, sorry, range of tan x? रेंज ऑफ tan x क्या होता है? कुछ भी रख दो, -∞ to ∞ है ना। tan का ग्राफ देखोगे तो tan का मतलब टेबल में देखो 0 से ∞, 0 से 90 के बीच में चले जाता है। So it here we can say that x belongs to real number, means we can put for the inverse we can put any real number, but for y यहाँ पे क्या मिलेगा? -π/2 to π/2 ही रहेगा। बट एक बात बताइए, π/2 पे डिफाइंड है क्या? tan। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan π/2?
tan pi by 2 is Infinity. undefined. So if the tan is not defined or function is not defined for given value of x, so their inverse also will not define for that given value of the x. मतलब उस डोमेन के लिए tan भी डिफाइन नहीं रहेगा, इनवर्स डिफाइन नहीं रहेगा. मतलब हम यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 तो लेंगे, कोई इशू नहीं है, इसका भी वही रहता है, बट माइनस पाई बाय 2 पे ओपन हो जाएगा और पाई बाय 2 पे ओपन हो जाएगा, बिकॉज पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है फंक्शन, इसलिए उसका इनवर्स भी डिफाइंड नहीं होगा. नाउ व्हाट अबाउट द कोसेक इनवर्स एक्स? कोसेक इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू जल्दी बताइए. मॉड ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसका मतलब जानते हो, मॉड ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इनका मतलब हो गया एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड एक्स शुड बी लेस देन 1. समझ में आया? मॉड ऑफ एक्स का क्या होता है? मतलब मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, मतलब कोई आपसे पूछे मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इनका मतलब होगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए. इसका मतलब ये होता है. तो मैं उस दोनों चीजें नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख के देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे. टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. तो कैन वी राइट डाउन हियर x should be here greater than equal to 1 and x should be less than equal to 1. Less than equal to 1 or minus 1? Minus 1, not 1, minus 1. तो माइनस 1 से छोटा और 1 से बड़ा, मतलब माइनस 1 to 1 के बीच में हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं इस साइन कोसेक इनवर्स एक्स में. व्हाट अबाउट द हियर डोमेन, सॉरी रेंज? तो y बिलोंग्स टू, जल्दी बताइए कहां तक? माइनस पाई बाय 2 पे साइन डिफाइंड है, कोसेक डिफाइंड है, यस डिफाइंड है. तो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 बट एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे कोसेक डिफाइंड नहीं होता, उसका इनवर्स भी नहीं डिफाइंड होगा. व्हाट अबाउट फॉर द दिस cos x? तो cos x में आपको x बिलोंग्स टू द सेम माइनस 1 टू 1, बट y बिलोंग्स टू 0 टू पाई. 0 टू पाई इसका ग्राफ बनाइएगा तो आपको 0 टू पाई में प्रिंसिपल इंटरवल मिलेगा. व्हाट अबाउट फॉर द cot? तो x बिलोंग्स टू, कॉट इज सब सारे नंबर के लिए डिफाइंड है. कॉट का डोमेन क्या होता है? ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, एक्सेप्ट n पाई. n पाई नहीं होता. व्हाट अबाउट द कोडोमेन फॉर दिस? द कोडोमेन विल बी, जल्दी बताओ. 0 पे कॉट डिफाइंड नहीं होता, तो 0 पे ओपन हो जाएगा और पाई पे भी ओपन हो जाएगा. व्हाट अबाउट फॉर द सेक? सेक के लिए भी सेम, x शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड x शुड बी लेस देन इक्वल टू -1. ये चार्ट में से कोई भी एक आपको 1 मार्कर में पूछा जा सकता है. डोमेन और रेंज बताइए इनवर्स का. व्हाट अबाउट दिस पार्ट? y बिलोंग्स टू व्हाट? क्या जाएगा y बिलोंग्स टू? जैसे आपने यहाँ लिखा ना, सेम यहाँ पे सेक इनवर्स इज नॉट डिफाइंड एट पाई बाय 2, तो कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 टू पाई. सेक डिफाइंड नहीं होता पाई बाय 2 पे, तो उसका इनवर्स भी डिफाइंड नहीं होगा, तो एक्सेप्ट पाई बाय 2. ओके, इफ यू लुक एट द दिस, ये तीन फंक्शन का प्रिंसिपल इंटरवल सेम है, इस तीन फंक्शन का प्रिंसिपल इंटरवल नियरली सेम है, इसलिए फर्स्ट 3 फंक्शन को एक में रखा गया, दूसरे और लास्ट 3 फंक्शन को एक में रखा गया. ओके, सो ऑन दिस नोट students, I'll stop here. In the next lecture we'll talk about more on this, more for this जो भी inverse trigonometry है, but this chart is very important. Okay.